Assalamu alaikum students. So this time again this lecture would continue with one of the most important topics in bipolar junction transistors, that is various techniques of biasing, which we had been discussing in our previous lecture as well. In today's lecture I shall devote a lot of time not only on the techniques of biasing, but also I would like to explain certain solved examples and problems. So that is why I said this lecture is rather of great importance, because you would come to analyze the potential divider circuit analysis and understand in a better way how to calculate an optimum Q point from the output characteristics of a bipolar junction transistor. Now this is a third or fourth of my lecture in the current series of bipolar junction transistors, and today I would exclusively devote for the potential divider circuit, that is in which we use a single power supply for biasing the base of a given transistor in a common emitter configuration. And I have chosen this particular slide to illustrate once again what a transistor circuit looks like, what are different biases involved in the operation of a transistor while we are trying to use it as a current device. Now this particular circuit does not illustrate the schematic of biasing which I'm trying to introduce today, but rather this circuit is of a very general nature, which shows two different biasing: VBB for the input circuit for biasing the forward junction, emitter base junction of the transistor, and VCC biases the base collector junction in the reverse bias. So this is a typical circuit for an NPN transistor, which uses double biasing, which uses two sources for forward biasing the input and reverse biasing the output circuit of a bipolar junction transistor. Now again, this is a revision of one of the slides which I had used in my previous 2 or 3 lectures, because some of these slides are of utmost importance, because we go back to them for basic knowledge, for evaluating basic science. And in this particular slide, number 5, I have tried to show you various Q points by drawing, and the Q point, as you remember by now, is obtained by drawing a load line on the output characteristic of a given transistor. So this is one of the reproduction of the slides we had seen in one of the earlier lectures as well. But I shall be referring to this slide in my today's lecture many a times. That's why I thought it's important to include this slide in my today's lecture. So here we start with the transistor output characteristic once again, and discuss the concept of drawing the load line and the biasing technique of the transistor and the stability. As I mentioned in my last lecture, the stability of the transistor operation with reference to the Q point, and in turn with reference to the beta factor, that is the gain factor, is very important in the operation of a transistor, and hence in its design, circuit design. Here I would like to mention that we would like to operate the transistor in the active region, and active region is defined as the region where the output current characteristics are almost linear, that is flat. We chose the active region because when we are utilizing the bipolar junction transistor as an amplifier, then of course it is this active region which we would be using and talking about a lot. Once again, to repeat for the nth time,
in a normal operation where we are trying to utilize where we are trying to use the transistor as a current device, as an amplifier circuit, the emitter base junction as usual has to be forward biased and the base collector junction has to be reverse biased. Then we determine the Q point by drawing the load line on the output characteristic curves. But this this Q point, the operating point obtained from the load line, has to be selected such that when we impose an AC signal, then our output does not go either into the saturation or in the cutoff region. In other words, in very simple terms, the Q point should be somewhere in the middle of the load line, and this is termed as a midpoint or midpoint Q point. Okay, so we move on, and then I show you this slide once again to memorize or to revise that what is an NPN transistor and what is a PNP transistor. To repeat once again, NPN transistor is indicated by the arrowhead, direction of the arrowhead. If the arrowhead points downward towards emitter, it's an NPN transistor. If the arrowhead points towards the base, upward, it is a PNP transistor. So on the extreme right hand side of this current slide is an NPN transistor, and then on the left is a PNP transistor. And in the active region of the output characteristic, which is, as I mentioned again, is going to be utilized for an amplifier circuit in a signal amplifier circuit using a transistor, then the voltage drop across the emitter base diode, forward bias diode, would be approximately 0.7 volt for silicon, and base collector junction is reverse bias, and we would be using the Kirchhoff laws for the current, total current flowing in the transistor, as well as the total voltages involved in the transistor circuitry. So these 3 points must be kept in mind when we are trying to develop certain equations to be utilized for the transistor to be operated in the as an amplifier using an AC signal. So this is my first slide, in which I mathematically show you 2 or 3 equations and the circuit itself. Now this circuit on the right hand side is not a representation of the voltage divider circuit, as I mentioned before, because it is utilizing 2 power supplies. I shall later on show you a slide in which I would mention that a potential divider circuit is unique in the sense कि उसमें सिर्फ एक ही पावर सप्लाई यूज़ होती है दोनों इनपुट सर्किट के लिए एज वेल एज आउटपुट सर्किट के लिए. तो ये एक जर्नलाइज्ड सर्किट डायग्राम है ट्रांजिस्टर की, जिसमें इनपुट फॉरवर्ड बायस और आउटपुट रिवर्स बायस के लिए दोनों बायसिंग मैंने अभी फ़िलहाल अलग अलग दिखाई हैं. लेकिन नेवरदलेस I can write down few very simple basic equations in order to give you some idea कि लोड लाइन किसी आउटपुट किसी सर्किट की, किसी ट्रांजिस्टर सर्किट की लोड लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं. तो लोड लाइन की इक्वेशन के लिए मैं आउटपुट सर्किट में टोटल वोल्टेजेस इन्वॉल्व की इक्वेशन लिखूंगी, जो कि बिल्कुल टॉप पे लिखी हुई है, विच इज़ VCC, दैट इज़ द total voltage of the output supply is now going to be divided at 2 places. Once between the first place where it is going to appear is the collector emitter diode, and the second is the voltage drop across the load, which in this circuit diagram I call it as RC. So VCE plus VRC is the voltage, which must be equal to the total voltage VCC, which appears in the output circuit. And then I can rearrange this equation and write in the form of current as well. So the top equation can be manipulated. Equation number 1, which is at the very top of this slide, can be manipulated and rewritten in the current form, which is at the bottom of this slide. And this is the way in which we can develop equations for calculating the various parameters to be used in the Q point, which is the whole idea, objective of today's lecture, कि हम लोड लाइन ड्रॉ करके Q पॉइंट के ऑप्टिमम पैरामीटर्स निकाल सकें. और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, Q पॉइंट कैन बी डिफाइंड बाय 3
पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। IB आपके इनपुट सर्किट में चल रही होती है करंट, IC आउटपुट सर्किट में करंट है, एंड VCE विच इज़ द कलेक्टर इमिटर वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन इन द आउटपुट सर्किट। तो इन 3 पैरामीटर से IB, IC एंड VCE को कंट्रोल करके आप एक ऑप्टिमम Q पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस Q पॉइंट की बेसिस पे फिर हम अपने सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये डिज़ाइन कर सकते हैं टू बी यूज्ड एज एन AC सिग्नल एम्पलीफायर। ओके, मैं रिवाइज कर दूं दोबारा तीनों करंट कंपोनेंट्स जो कि ट्रांजिस्टर में होते हैं, बिकॉज पहले जैसे हमने जिक्र किया पिछले कई लेक्चर्स में कि ट्रांजिस्टर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 करंट कंपोनेंट्स जो हैं वो IC, IB, IE डेजिग्नेट करते हैं। किस मुनासबत से? ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स के मुनासबत से। इमिटर की करंट IE होगी, बेस में से जो करंट पास कर रही है वो IB है, और कलेक्टर में जो आप कलेक्ट करते हैं टोटल करंट दैट्स IC। And then we can express them in the form of the exponential factors, क्योंकि ये करंट्स जो हैं फॉरवर्ड बायस में IB करंट जो है, IE current, I'm sorry, is exponentially rising because you have forward bias the junction, और इमिटर करंट से जो करंट निकल के कलेक्टर तक पहुंचेगी वो भी उस मुनासबत से फिर आपकी एक्सपोनेंशियल करंट होगी। सो ये स्लाइड आपको 3 करंट कंपोनेंट्स देती है डिफरेंट फॉर्म में, एंड दिस स्लाइड इज काइंड ऑफ अ वेरी वर्सेटाइल सेट ऑफ इक्वेशंस जो आप किसी भी वक्त इनकी ज़रूरत पड़ सकती है मुख्तलिफ कैलकुलेशंस में। अब मैं पहला सर्किट डिस्कस करूंगी विच इज़ नोन एज फिक्स बायस्ड ट्रांजिस्टर सर्किट टू बी यूटिलाइज फॉर कैलकुलेटिंग द Q वैल्यू ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अब आप इसमें देखेंगे कि अब मैं जनरलाइज पिछली 9 या 7-8 स्लाइड्स एक किस्म की रिवीजन की स्लाइड्स थी जिसमें मैंने जर्नल नेचर ऑफ द सब्जेक्ट को डिस्कस किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर स्लाइड से ऑनवर्ड्स अब हम एक मखसूस बाइसिंग टेक्निक की तरफ जाते हैं। और जैसा बॉटम ऑफ द स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है सिंगल पावर सप्लाई, कि अब मैं ट्रांजिस्टर को बाइस करूंगी बाय यूजिंग ओनली अ सिंगल पावर सप्लाई, जो कि VCC डेजिग्नेट हो रही है इस सर्किट में। तो आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ एक सिंगल बाइस सप्लाई है VCC, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन एज अ करंट डिवाइस और एज एन एम्पलीफायर सर्किट, वो हम किसी तरह भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमने एक सिंगल पावर सप्लाई VCC सर्किट में लगाई हुई है। ये VCC इनपुट सर्किट इमिटर बेस्ड सर्किट को फॉरवर्ड बायस कर रही है जैसे आपको नज़र आ रहा है, और आउटपुट सर्किट को आपके ये रिवर्स बायस कर रही है। तो VCC से दोनों इनपुट एज वेल एज आउटपुट सर्किट आपके रिस्पेक्टिवली बायस हो रहे हैं। इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस हो रहा है और आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस हो रहा है। आपको कैपेसिटर भी नज़र आ रहा है आउटपुट सर्किट में भी और इनपुट सर्किट में भी। ये एक जर्नलाइज सर्किट है कि अगर आपने एक AC सिग्नल को इम्पोज करना है, सुपर इम्पोज करना है DC बायस के साथ, तो फिर ये कैपेसिटर हम लगा देते हैं ताकि दोनों AC और DC सिग्नल्स की इंटरफेरेंस ना हो। तो ये सर्किट एक बहुत important circuit है in the sense that this designates a fixed bias transistor circuit and using a single power supply। तो जैसे टॉप की हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है कि अगर इस पर्टिकुलर सर्किट ऑफ स्लाइड 11 को मैंने डिस्टिंग्विश करना हो किसी जर्नल सर्किट से, जो कि मैंने पहले आपको किसी पिछली स्लाइड में अभी दिखाया है, तो उसकी एक बेसिक पहचान क्या है कि हम एक सिंगल रजिस्टर RB बेस के साथ कनेक्ट हमने किया हुआ है, और उसके बाद हमने बेस की सप्लाई जो है वो हमने VCC से ली हुई है। तो ये सर्किट आपको डिस्टिंग्विश करेगा, ये पर्टिकुलर सर्किट, और आगे चल के जो मैं एक दूसरा सर्किट नंबर 2 डिस्कस करूंगी, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, कि अभी तक मैंने बेस के साथ एक सिंगल रजिस्टर लगाया है और सिंगल पावर सप्लाई लगाई है। तो सिंगल पावर सप्लाई and a single resistor at the base would be defined as a fixed bias transistor circuit using only one resistor in the base।
तो ये सर्किट रिकग्निशन है फिक्स बायस्ड ट्रांजिस्टर सर्किट की। इसकी एडवांटेज क्या है कि जैसे मैंने बताया कि बजाय आप दो बायसिंग को यूटिलाइज करें, दो पावर सप्लाई से आप सर्किट को बायस करें, हम सिर्फ एक सिंगल पावर सप्लाई से सर्किट को बायस कर सकते हैं। तो इस लिहाज से एडवांटेज क्या हुई कि सर्किट में आपके सिंप्लिसिटी आ गई। फिर आप कि मगर इस सर्किट में डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि द होल आइडिया ऑफ दिस लेक्चर और पिछले एक लेक्चर का जो था वो ये था कि हम एक ऐसा स्टेबल क्यू पॉइंट डिटरमिन करें कि जब हम इस ट्रांजिस्टर सर्किट को एज एन एसी एम्पलीफायर यूज़ करें तो हमारी आउटपुट सिग्नल जो है ना तो डिस्टॉर्ट हो और ना क्लिप हो। और क्लिपिंग दोनों तरीके से हो सकती है कि आपका टॉप पोर्शन भी क्लिप हो सकता है और आपका बॉटम पोर्शन भी क्लिप हो सकता है। यानी जो लोड लाइन पे आपने क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश किया है, डिटर्मिन किया है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्विंग आ जाए तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यू पॉइंट सैचुरेशन में भी स्विंग करके जा सकता है और नीचे डाउनवर्ड कट ऑफ रीजन में भी स्विंग करके आ सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि इस क्यू पॉइंट को लोड लाइन के कहीं मिड में रहना चाहिए एंड दैट मिड पॉइंट इज डिफाइंड एज द मिड पॉइंट क्यू वैल्यू। तो इस सर्किट की एक जहां ये एडवांटेज है कि हम एक सिंगल पावर सप्लाई वीसीसी से दोनों इनपुट एज वेल एज आउटपुट सर्किट्स को बायस कर सकते हैं। मगर डिसएडवांटेज ये है कि क्यू पॉइंट जो है उसमें काफ़ी इंस्टेबिलिटी है और ये इंस्टेबिलिटी थर्मल वेरिएशन की वजह से यानी चेंजेस इन टेम्परेचर की वजह से होती है, क्योंकि चेंजेस इन टेम्परेचर जो हैं वो आपके बीटा विच इज़ द गेन फैक्टर उसको अफेक्ट करता है। तो इस मुनासिबत से ये एक बड़ी डिसएडवांटेज भी हो गई। इस तरह का फिक्स बायस सर्किट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो स्विचिंग सर्किट्स में आती है। तो हम आगे चल किसी लेक्चर में ट्रांजिस्टर को एज अ स्विचिंग डिवाइस भी के तौर पे भी स्टडी करेंगे, तो वहाँ इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट की एज अ स्विचिंग डिवाइस। इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने टॉप पे लिखा हुआ है सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स 1 और इसकी कंटिन्यूएशन है सर्किट कैरेक्टरिस्टिक 0.2। अब ये मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है। आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये सर्किट एग्जैक्टली वही है जो मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको दिखाया। यहाँ अब मैं लोड लाइन से दो पैरामीटर कैलकुलेट करती हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो मैक्सिमम करंट आप चूज़ कर सकते हैं वो मैक्सिमम करंट जो आपके क्यू पॉइंट को ऐसे रीजन में ना ले जाए कि जहां आपका आउटपुट सिग्नल क्लिप हो रहा हो या डिस्टॉर्ट हो रहा हो। तो वो हमने निकाला कि क्यू पॉइंट जो है द करंट जो आपकी सैचुरेशन रीजन में है, आउटपुट करंट IC इन द सैचुरेशन रीजन कैन बी कैलकुलेटेड एंड सिमिलरली VCE दैट इज द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर जो कि आपके कट ऑफ रीजन में निकल सकती है, वो भी हमने कैलकुलेट कर दी है और वो एग्जैक्टली मैक्सिमम वोल्टेज जो आपकी है वो VCC यानी पावर सप्लाई की एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड के बराबर निकल आती है। फिर मैंने नीचे क्यू पॉइंट इक्वेशंस भी आपके लिए लिख दी हैं कि ये 3 इक्वेशंस जो कि हमने लोड लाइन से ड्रॉ की हैं और इसमें वही 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ गए जिसका मैंने बहुत शुरू में जिक्र किया था इन द इंट्रोडक्टरी रिमार्क ऑफ टुडेज लेक्चर कि ये 3 पैरामीटर्स क्या होते हैं। IB कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनपुट सर्किट एंड IC कैलकुलेटेड फ्रॉम द आउटपुट सर्किट एंड VCE विच इज़ द वोल्टेज ड्रॉप across collector emitter junction, the reverse bias junction as obtained from the output characteristics। तो ये तीनों क्यू पॉइंट इक्वेशंस के ये तीनों पैरामीटर जो हैं IB, IC एंड VCE हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ड्राइंग द लोड लाइन ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि इसी पे बेस्ड फिर आगे चल के मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक थोड़ी सी एक्सरसाइज कराऊंगी ताकि उससे आपको सर्किट एनालिसिस के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब मैंने क्यू पॉइंट इक्वेशंस लिखने के बाद अब उसी चीज़ सर्किट को मैं अब आगे लेके चल रही हूँ और सबसे पहले हम बेस एमिटर लूप पे कंसंट्रेट करते हैं। तो बेस एमिटर लूप में अब आप देखिए जिसको मैंने रेड उससे इंडिकेट किया हुआ है
तो जैसा हमने पहले बताया कि हमारा हेडिंग जैसे कह रही है कि फिक्स बायस, आपकी जो बेस को हमने बायस किया हुआ है एक ही पावर सप्लाई वीसीसी से किया हुआ है, तो अब ये इनपुट लूप में अगेन उसी तरह आपको दो जगह पोटेंशियल ड्रॉप नज़र आ रहा है वीसीसी का, एक बिटवीन द बेस एमिटर डायोड और दूसरा जो रेजिस्टर आरबी आपने बेस के साथ लगाया हुआ है, तो वो रेजिस्टर बी के दरमियान और डायोड ईबी के दरमियान, जंक्शन बिटवीन इमिटर बेस यानी इनपुट डायोड के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे हमने पहले बहुत दफ़ा जिक्र किया कि फॉरवर्ड बायस एमिटर बेस जंक्शन में अगर सिलिकॉन का हो तो बीई जो है वोल्टेज अक्रॉस बीई इज़ ओनली 0.7 वोल्ट। फिर तीसरी इक्वेशन मैंने जो यहाँ लिखी हुई है वो हमें पहले से याद है, जब हमने हाइब्रिड पैरामीटर्स का लेक्चर किया था कि आईसी दैट इज़ द कलेक्टर करंट जो है वो बीटा टाइम्स आईबी होती है, यानी बीटा इज़ द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन ए वे, और उसको अमूमन आम तौर पे गेन फैक्टर कहा जाता है, ट्रांजिस्टर गेन फैक्टर, जबकि जिस वक्त हमने ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बायस किया हुआ हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बायसिंग ट्रांजिस्टर की बेस बायसिंग जो है वो सिंगल पावर सप्लाई से वीसीसी से कर रहे हैं। अब वही कंटिन्यूएशन है। नाउ फर्स्ट आई वाज, लेट्स लुक एट दिस स्लाइड अगेन। दिस इज बेस एमिटर लूप, जिसको मैंने डिस्टिंग्विश किया है वन point से, that first this is the base emitter loop and now we are looking at the collector emitter loop separately. In the collector emitter loop अब हमारी जो पावर सप्लाई VCC है वो अगेन उसी तरह दो जगह डिवाइड हो रही है, दो प्लेसेस में उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जिस तरह के इनपुट लूप में हुआ था। अब आउटपुट लूप में जैसे इनपुट लूप में आरबी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, आउटपुट सर्किट में आरसी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आरसी रेजिस्टर है आउटपुट सर्किट में या आउटपुट लूप में, और आरबी रेजिस्टर था इनपुट लूप में। तो उसी तरह बिल्कुल हमने इक्वेशन लिख ली और करंट आउटपुट सर्किट में और इमिटर बेस कलेक्टर इमिटर लूप में करंट आईसी निकाल ली हमने, कलेक्टर इमिटर लूप में करंट वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, और साथ में हमने थर्ड इक्वेशन द रिलेशन बिटवीन आईसी एंड आईबी लिख दी। अब मैं एक बार फिर वापस जा रही हूँ पिछली स्लाइड नंबर 13 पे, ताकि आप दोनों इनपुट और आउटपुट लूप का कंपैरिजन आसानी से कर सकें। ये देखिए, let's look at the RB side, the loop containing the base as well as RB and connected to the power supply VCC. अब जो मैंने एक बॉक्स में आपको इक्वेशन शो की है वो वोल्टेज वही है, आपकी पावर सप्लाई की वोल्टेज वही है VCC, लेकिन अब ये कहाँ ड्रॉप हो रही है? बेस एमिटर लूप में RB के अक्रॉस और वोल्टेज बिटवीन बेस एमिटर के दरमियान। और मैंने क्या कैलकुलेट किया इमिटर लूप से, बेस इमिटर लूप से, इनपुट लूप से मैंने क्या कैलकुलेट किया? द बेस करंट आईबी। अब अगले हम कलेक्टर इमिटर को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? वही आपकी पावर सप्लाई वीसीसी अब आउटपुट सर्किट में दो जगह डिवाइड हो रहा है उसका वोल्टेज ड्रॉप, और इस सर्किट से हमने आईसी निकाल लिया। तो इनपुट सर्किट में हमने आईबी कैलकुलेट किया, आउटपुट सर्किट से हमने आईसी कैलकुलेट किया। तो इस तरह हमारे पास तीनों पैरामीटर निकल आए क्यू पॉइंट के, यानी आईबी फ्रॉम द इक्वेशंस वी डिराइव्ड फ्रॉम द इनपुट लूप, IC is the value of the collector current which we derived from the second loop which is collector emitter loop in the output circuit, और उसके बाद हमने VCEE निकाल लिया। तो इस तरह तीनों पैरामीटर्स आपके पास Q पॉइंट के निकल सकते हैं, और आप किसी तरह भी कैलकुलेशन करके Q पॉइंट को निकाल सकते हैं फॉर द ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एज एन AC सिग्नल एम्पलीफायर। तो अब आप इसको एनालिटिकल तरीके से समझिए। ये मैंने पहले एग्जांपल ली है, इसको मैंने सर्किट के यानी फिगर का नंबर और मैंने एक्सरसाइज यानी प्रॉब्लम का नंबर आज मैंने लेक्चर नंबर की मुनासबत से रखा है। तो ये चूँकि हमारा लेक्चर नंबर 19 है और इस सर्किट को मैं लेबल कर रही हूँ एज
फर्स्ट सर्किट दैट इज़ 19.1 सर्किट, और इसी मुनासबत से एग्जाम्पल को लेक्चर 19 एंड फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करा रही हूँ उसको मैंने 19.1 का लेबल दिया है। अब आप यूटिलाइज कीजिए वो इक्वेशंस जो हमने पहले लिखी थी। आप देखें ये सर्किट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया पिछली की निस्बत। इन दो स्लाइड 13 और 14 को देखिए कि यहाँ मैंने आरबी को एक जर्नल सिंबल आरबी दिया हुआ है, दैट इज़ द बेस रेजिस्टर। इसी तरह आरसी को दैट इज़ रेजिस्टर रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस विद द कलेक्टर पॉइंट। और इस तरह इन दो सर्किट्स को देखने के बाद अब हम एक बड़ी स्पेसिफिक एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आई हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ आर बी विच इज़ 360 किलो ओम, एंड सिमिलरली आई हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ आर सी विच इज़ 2 किलो ओम। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह इस स्लाइड में अप्रिशिएट कर सकते हैं कि देखिए आरबी और आरसी की वैल्यूज़ में फ़र्क देखिए कि हमने आरबी को काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई रखा हुआ है कंपेयर टू आरसी। वो किस वजह से कर रहे हैं कि कहीं हम अपने ट्रांजिस्टर को गलती से बहुत ज़्यादा एक्सेस करंट बेस में ना पास कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि वो मैक्सिमम पावर डिलीवरी जो है, डिसिपेशन जो है, उससे हमने नीचे रखना है, वरना आप ट्रांजिस्टर को बेहतियाती की वजह से डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन वी कनेक्ट a resistance at the base which should be of higher value than the resistance in the output circuit जिसके across आप लोड जिसको आप लोड के तौर पे आउटपुट सर्किट में यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने पिछली इक्वेशंस को यूटिलाइज किया है जो हमने पहले निकाली थी। कैन आई विद योर परमिशन गो बैक to 1 or 2 slides again and see। ये देखिए ये वाला पहला इक्वेशन है बेस इमिटर इनपुट लूप की। ये देखिए IB मैंने निकाली हुई है, इस IB और IC निकाली हुई हैं। इस IB और IC को मैंने अब यूज़ किया है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि VBE जो है वो 0.7 वोल्ट है और VCC मेरी इस वक्त 8 वोल्ट है। तो 8 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट यूज़ करके और बेस रेजिस्टर यूज़ करके हम कलेक्टर की इन द इमिटर लूप में हम IB की वैल्यू मैंने निकाल ली जो अबाउट 20.3 माइक्रो एम आ रही है। उसके बाद मैंने आपको एक और रिलेशनशिप दिया था कि IC इज इक्वल टू बीटा IB, तो उससे मैंने फिर हम निकाल सकते हैं। अगर बीटा हम 100 सपोज करें जो कि दिया हुआ है, ब्लू इंक में आपको लिखा है HFE। H स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड और F stands for forward emitter, forward in the common emitter configuration। तो H भी वही चीज़ है जो कि बीटा है। तो कहीं किसी एग्जाम्पल पे HF आपको लिखा नज़र आएगा और कहीं आपको बीटा लिखा नज़र आएगा। तो HF the hybrid parameter that is the gain factor is 100। तो इसको यूज़ करके फिर हमने IC कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद हमने VCE कैलकुलेट कर लिया। तो ये तीनों पैरामीटर्स जो आपको कलर्ड बॉक्सेस में नज़र आ रहे हैं ये क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर सर्किट का Q पॉइंट आपने फिर इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमें ये देखना है, देखिए द होल आइडिया इज़, लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड अगेन। हम चाह ये रहे हैं इस सर्किट नंबर फर्स्ट सर्किट जो है मेरा आज के लेक्चर का विच इज़ 19.1, 19 is the lecture number, and this is the first circuit which you have to understand with proper numerical values that we use for the power supply VCC which is 8 volt, the resistor RB which is 360 kilo ohms, the resistor RC which is 2 kilo ohm, and so on and so forth। तो इस पहले सर्किट में, इस पहली एक्सरसाइज में हमें क्या कहा गया है कि हमने ये देखना है कि Q पॉइंट की क्या वैल्यूज़ हैं। Q पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, रिवाइज कर दूं कि Q पॉइंट 3 चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट करता है कि आपकी आउटपुट सर्किट में कलेक्टर करंट कितनी हो, आपकी इनपुट सर्किट में बेस करंट कितनी हो। याद रखिए कि इनपुट सर्किट की बेस करंट जो है वही कंट्रोल कर रही है आपके आउटपुट सर्किट की कलेक्टर करंट को। तो बेस में कितनी आपकी बेस करंट होनी चाहिए, तो उसकी मुनासबत से फिर आपकी कलेक्टर करंट होगी और VCE इस्टेब्लिश करेगी कि आपका Q पॉइंट सेचुरेशन में या नीचे कट ऑफ रीजन में स्विंग ना कर जाए। तो IB, IC और VCE ये 3
पैरामीटर्स जो हैं, ये 3 जो फैक्टर्स हैं, 3 पैरामीटर्स आपके ट्रांजिस्टर के हैं। और इस वक्त ट्रांजिस्टर का कौन सा सर्किट हम डिस्कस कर रहे हैं? फिक्स्ड बायस, यानी एक सिंगल पावर सप्लाई से हम अपने दोनों इमिटर एज वेल एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट लूप को बायस किया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर सर्किट को लें और इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लें, तो जैसे मैंने अभी शुरू में कहा, हमें क्या करना है? हमें क्यू पॉइंट निकालना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या ये क्यू पॉइंट लोड लाइन पर किसी ऑप्टिमम जगह पर मौजूद है या नहीं। ऑप्टिमम जगह से क्या मुराद है कि ये स्विंग करके कहीं सैचुरेशन में ना चला जाए, ये स्विंग करके डाउनवर्ड्स कट ऑफ रीजन में ना चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ किसी भी वेरिएशन की वजह से, अगर ऐसा हुआ क्यू पॉइंट आपका लोड लाइन पे बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है, तो फिर आपके आउटपुट जो एसी सिग्नल है वो क्लिप होने का उसमें खतरा है। तो ये हमने 3 वैल्यूज़ IB, IC और VCE निकाल ली। ये पहला स्टेप हुआ हमारा क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करने का। अब आगे चलते हैं। अब मैंने वही लिखा है कि अब उसी सर्किट को आप लें, 19.1 सर्किट का नाम था, तो 19.1 सर्किट को आप दोबारा देखिए। अब आपने IB और IC और VCE जो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं, उसको आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर प्लॉट करें एज अ लोड लाइन, और लोड लाइन से फिर आप ये निकालिए कि डिटर्मिन वेदर द सर्किट इज मिड पॉइंट बायस्ड, कि आपका क्यू पॉइंट जो है वो लोड लाइन के मिड में है या नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ये अपवर्ड स्विंग करेगा तो सैचुरेशन रीजन में चले जाएंगे, अगर आप डाउनवर्ड्स ये क्यू पॉइंट नीचे शिफ्ट करके आ गया तो फिर आप कट ऑफ रीजन में चले जाएंगे। तो हमारा इसी तरह जो पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दी, तो IC सैचुरेशन जो है वो सिंपल टोटल जो आपकी पावर सप्लाई VCC है उसको आप डिवाइड करें, सिंपल ओम्स लॉ लगा लें आउटपुट सर्किट में, ये सीधी सी बात है। तो आपकी IC यानी सैचुरेशन क्या होगी कि ओम्स लॉ कहता है कि आपकी जो रेजिस्टर लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगी हुई है सर्किट में आउटपुट लूप में, वो होगी सिंपली VCC डिवाइडेड बाय RC। ये आपको दे देगा करंट, टोटल मैक्सिमम करंट इन द सैचुरेशन रीजन, और ये निकल आई 4 मिली एम्पियर। सो 4 मिली एम्पियर से ज़्यादा आपको करंट इस सर्किट में नहीं मिलेगी इन इस बायस VCC और इस लोड रेजिस्टर RC से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। इसी तरह आप कट ऑफ निकाल लीजिए, VCE कट ऑफ, तो ये सारी की सारी जाहिर है जितनी आपकी बायस है उससे ज़्यादा तो आपकी वोल्टेज नहीं निकाल सकते, मिल सकती है आपको कलेक्टर एमिटर के दरमियान, इससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप तो हो नहीं सकता, तो वो 8 वोल्ट्स निकल आई। तो मैक्सिमम करंट जो आप इस सर्किट में, कलेक्टर करंट जो आप इस सर्किट से ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स 4 मिली एम, और मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप जो आपका डायोड के आउटपुट डायोड के क्रॉस हो सकता है वो है 8 वोल्ट्स। तो ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए, VCE सैचुरेशन एंड IC सैचुरेशन, और ये ब्लू लाइन फिर हम ड्रॉ करके लोड लाइन निकाल सकते हैं। अब मैंने एक क्यू पॉइंट सिलेक्ट किया है हाफ वे थ्रू, विच इज़ 4 का हाफ वे 2 मिली एम आ गया, और इसी तरह 8 वोल्ट्स का 4 वोल्ट्स आ गया। तो क्यू पॉइंट नाउ इज सिचुएटेड एट मिड पॉइंट, और अगर इस वक्त हम डिस्प्ले कर रहे होते दी वेरियस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB, तो फिर हम वहाँ से IB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कैन आई जस्ट गो बैक वंस अगेन फॉर दिस मिनट, सो वी कैन कंक्लूड that this particular circuit, the Q point happens to be in the middle of the load line. तो ये हमने एक ऐसी optimum values choose की थी VCC, RC और RB की, कि हम अब आपके Q point is midpoint. So that was your example number 19.1 and point 2 using the single circuit of 19.1. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड आई कॉल इट 19.3, लेकिन सर्किट मैं वही यूटिलाइज कर रही हूँ 19.1 का। इसमें अब एक चीज़ मैं आपको और एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा फीचर बता रही हूँ कि हमने अभी कैलकुलेट किया, ये देखिए कि क्यू पॉइंट हमारा मिड में नज़र आ रहा है लोड लाइन के, यानी IC 2 मिली एम है और VCE 4 वोल्ट है, जबकि टोटल वैल्यू VCC की आपकी 8 वोल्ट थी।
लेकिन एक और फैक्टर है जिसकी वजह से ये क्यू पॉइंट जो है आपका लोड लाइन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है, लोड लाइन के अक्रॉस शिफ्ट हो सकता है, एंड दैट शिफ्ट इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द वेरिएशन इन डिवाइस टेम्परेचर। क्योंकि हमने बहुत शुरू में जब हमने ये कोर्स शुरू किया था तो हमने इस चीज़ को एम्फसाइज किया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बाय डेफिनेशन आर वेरी सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेम्परेचर्स। क्योंकि किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके थर्मल जनरेशन की वजह से कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और बहुत से पैरामीटर्स आपके अफेक्ट होते हैं, जिसकी डिटेल्स हम पिछले लेक्चर्स में जब हम फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे वहाँ काफ़ी तफसील से हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम वापस आते हैं सर्किटरी की तरफ, ट्रांजिस्टर के इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कि जहां हम इस वक्त आज के लेक्चर में क्यू पॉइंट पर हम समझना चाह रहे हैं कि क्यू पॉइंट एक ऐसा पैरामीटर है कि जिससे आपके ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल हो रहा है। तो अब मैंने लिखा है कि बीटा हमारे इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का जो मैंने सर्किट 19.1 में आपको दिखाया है, इस वक्त आपके अगेन वही ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले, वही सर्किट लेफ्ट साइड पे आपके डिस्प्ले हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर, एक हमने फिक्टिशियस एग्जांपल ली है कि चलिए आपका टेम्परेचर पहले 25 डिग्री सी था और फिर उसको 4 टाइम्स बढ़ा के हमने 100 कर दिया। तो फिर हम देखते हैं कि आपकी बेस करंट, कलेक्टर करंट और VCE यानी क्यू पॉइंट के इन तीनों पैरामीटर्स पर आपके क्या असर पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि बीटा जो है वो आपका टेम्परेचर के साथ चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? शुरू में मैंने बताया था कि गेन फैक्टर जो है वो कंट्रोल हो रहा है करंट से, यानी बेसिकली व्हाट इज अ गेन फैक्टर बीटा? बीटा इज अ रेशियो बिटवीन आउटपुट करंट ओवर बेस करंट IB। तो आउटपुट करंट कहाँ से जनरेट हो रही है? उन कैरियर से जो कि पीछे इमिटर से चले आ रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थर्मल जनरेशन रेट बढ़ेगा तो आपकी कैरियर्स की तादाद भी बढ़ेगी, माइनॉरिटी कैरियर्स माइंड यू। इसी तरह आउटपुट रीजन में आपके क्या चीज़, आपके आउटपुट डायोड में, हालांकि वो रिवर्स बायस है, वो अपनी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी मेजॉरिटी कैरियर्स की, मगर टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स बायस डायोड में लीकेज करंट यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट जो है, माइनॉरिटी कैरियर करंट, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। तो इस वजह से टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके बीटा पे फ़र्क पड़ा और बीटा की वजह से आपके IC और IB इन दोनों क्वांटिटीज़ पे फ़र्क पड़ा। तो आप देखिए 25 डिग्री C पे आपका बीटा 100 था और अगर हम टेम्परेचर को 100 कर दें तो फिर बीटा आपका 150 हो जाता है। तो जब ये हम वैल्यूज़ बीटा की दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बीटा की वेरिएशन देखें तो आप देख रहे हैं कि बेस में तो इतनी वेरिएशन नहीं आ रही, लेकिन आपकी कलेक्टर करंट पर काफ़ी वेरिएशन आ जाती है और उसकी वजह से आपकी VCE में काफ़ी वेरिएशन आ जाती है। अब आप गौर से देखिए, एक मैंने बॉक्स जो है वो मैंने रेड में शो किया हुआ है, बॉटम एक्सट्रीम राइट बॉक्स एट द बॉटम ऑफ दिस टेबल। इसमें आप देख रहे हैं कि VCE की वैल्यू इतनी कम होके ओनली अबाउट 1.92 रह गई, जबकि शुरू में वो 3.94 थी। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि अब अगर हाई टेम्परेचर्स पे हम चले जाएं, बहुत हाई टेम्परेचर्स पे चले जाएं, तो हमारा डायोड जो है, ट्रांजिस्टर जो है वो टेंड कर रहा है, द क्यू पॉइंट इज नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड्स द कट ऑफ रीजन। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे कि 25 डिग्री C इज़ टेकन टू बी एज रूम टेम्परेचर, कि जहाँ आपके अगर टेम्परेचर की बहुत वेरिएशन नहीं है, द एग्जैक्ट वैल्यू इज़ 27 डिग्री C, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल एग्जांपल में 25 डिग्री C को भी हम अप्रॉक्सीमेटली रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर से बढ़ के डिवाइस का टेम्परेचर इतना हाई हो जाए, 4 टाइम्स हाई, तो आपने देखा कि बगैर किसी और वेरिएशन के आपका क्यू पॉइंट जो है वो शिफ्ट होके कट ऑफ रीजन में आ जाएगा, यानी आपका सिग्नल जो है वो क्लिप हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी डिवाइस जो है वो कट ऑफ रीजन में चली गई एंड यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट सिग्नल। तो इस तरह वेरिएशन से हम देख सकते हैं, न सिर्फ VCC की वेरिएशन से, R that is load resistor and base resistor और now up temperature, कि इन 3-4
पैरामीटर्स के चॉइस पर कंट्रोल करने से हम क्यू पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर को एक बेहतर तरीके से एम्पलीफायर सर्किट्स में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं दूसरा इसी तरह का एक सर्किट बायसिंग के हिसाब से सर्किट डिस्कस करती हूँ और ये इनफैक्ट आज के लेक्चर का हाईलाइट है, विच एंड दिस सर्किट इज़ डिफाइंड एज वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। और इसमें हम अब एक के बजाय 2 रेजिस्टर लगा रहे हैं, क्योंकि फिक्स बायस में मैंने एक ही बेस के साथ एक रेजिस्टर लगाया हुआ था। वहाँ भी एक चीज़ मैं बता दूं कि फिक्स बायस सर्किट में, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, और ये मौजूदा सर्किट जो इस स्लाइड नंबर 19 में आपको नज़र आ रहा है, द बेसिक डिफरेंसेस कि वहाँ बेस के साथ हमने एक सिंगल रेजिस्टर RB लगाया हुआ था, लेकिन अब हमने यहाँ 2 रेजिस्टर R1 और R2 लगा दिए हैं। मगर ये याद रखिए कि वोल्टेज अभी भी मैंने सिंगल पावर सप्लाई VCC से ली हुई है। So the highlight of this second type of voltage divider circuit is कि आपने पावर सप्लाई आपकी अब भी सिंगल है, जिस तरह के आपकी फिक्स बायस सर्किट में थी, लेकिन रेजिस्टर अब आपके बेस के साथ 2 रेजिस्टर हो गए। तो इनपुट लूप जो है या इनपुट सर्किट जो है अब आपका एज अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एक्ट करेगा फॉर द पावर सप्लाई VCC। तो ये वोल्टेज अब आपकी डिवाइड होगी बिटवीन R1 एंड R2, जो कि आपको इस सर्किट में नज़र आ रहे होंगे। पैरेलल में R1 और R2 पैरेलल में हो जाते हैं VCC के। तो हम पैरेलल डिवाइडर सर्किट के तौर पे फिर वोल्टेजेस एंड करंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मेथड मैं अभी 1 मिनट में आपको बताऊंगी। ये सर्किट जो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग which is utilized in transistor amplifier circuits, and a thorough understanding of the DC analysis of this circuit is essential for anybody who is utilizing these as an amplifier circuit. And in this circuit you would notice that R1 and R2 are utilized as a voltage divider to the base, and we can also appreciate its similarity of this circuit with the common emitter configuration. अब बिल्कुल जैसे मैंने पहले फिक्स बायस के सर्किट में कहा था कि किसी सर्किट की डायग्राम को देख के हम कैसे बता सकते हैं एज अ टेक्नीशियन, क्योंकि मैंने ये लफ्ज़ पिछली उसमें टेक्नीशियन का इस्तेमाल किया था कि एज अ टेक्नीशियन हम कैसे बता सकते हैं कि ये फिक्स बायस सर्किट है या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि फिक्स बायस में सिंगल रजिस्टर RB है, यहाँ आपको 2 रजिस्टर R1 R2 नज़र आ रहे हैं, तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। और इसी मुनासबत से इसकी हेडिंग हमने चूज़ की है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट फॉर अ गिवन ट्रांजिस्टर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सेलेंट फीचर्स क्या इस सर्किट के होते हैं कि आपको 2 रजिस्टर यानी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट नज़र आ रहा है, और क्यू पॉइंट जो है इसमें इस सर्किट को यूटिलाइज करने का, इस्तेमाल करने का इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हमें ये मिलता है कि क्यू पॉइंट रिलेटिवली स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सर्किट नंबर 1 जो अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। टू स्टार्ट विद, आप देख रहे हैं कि एक रजिस्टर एक के बजाय अब आपके सर्किट में देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड विद द बेस। जो फिक्स बायस सर्किट था, मैंने पहले आपको बताया कि उसको हम स्विचिंग सर्किट्स में, जब ट्रांजिस्टर को स्विचिंग एज अ स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है वो आपको लीनियर एम्पलीफायर में यूटिलाइज होता है। सो दिस वाज द होल आइडिया ऑफ टुडेज लेक्चर कि हम एक ऐसे बायसिंग सर्किट को डिस्कस करें कि जो आपको एक स्टेबल क्यू पॉइंट दे, जिसमें बीटा पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस क्यू पॉइंट की ना हो, क्योंकि अभी आपने फिक्स बायस सर्किट में देखा कि टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ बीटा चेंज होता है, और बीटा चेंज होने की वजह से क्यू पॉइंट चेंज होता है। तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में एनालिसिस करके बताऊंगी कि हमारा जो क्यू पॉइंट की कैलकुलेशंस हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ IB, डिटर्मिनेशन ऑफ IC एंड डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन ऑफ VCE,
तीनों पैरामीटर में कहीं भी मैं बीटा को यूज़ नहीं करूँगी। तो अगर बीटा पर डिपेंडेंट नहीं है क्यू पॉइंट की, इसका मतलब है आपका क्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर सर्किट में, जिसको मैंने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहा है, तो क्यू पॉइंट की डिपेंडेंस बीटा पर नहीं है। लिहाजा क्या साबित हुआ कि ये वाला पर्टिकुलर सर्किट जो है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है, वो एम्पलीफायर सर्किट के लिए बहुत मुनासिब रहेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि ये कहाँ इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, basically in linear amplifier circuits, because the Q point values are stable against any changes in beta, अगर बीटा चेंज हो रहा है टेम्परेचर की वजह से। तो अब मैं ये मेरी पहली स्लाइड थी, कैरेक्टरिस्टिक पहली थी इस पर्टिकुलर सर्किट की, कि इसमें आपको वोल्टेज डिवाइडर बेस के ऊपर नज़र आ रहा है। फिर क्यू पॉइंट की मैंने एडवांटेज लिखी, फिर मैंने डिसएडवांटेजेस लिखी। अब मैं चली जाती हूँ मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दिस सर्किट पे। R1 और R2 को अगर आप बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे दो रेजिस्टर आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इससे हम थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, इनपुट वोल्टेज की, एज सीन फ्रॉम दी बेस टर्मिनल। इसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन को मैं आगे ज़्यादा तफसील से बताऊंगी, जहां मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी कैलकुलेट करूंगी आपके लिए। तो ये वोल्टेज आपकी, आप देखिए, अगर इनपुट लूप को आप देखें तो द पावर सप्लाई की वोल्टेज VCC जो है वो आपकी डिवाइड हो रही है। ओम्स लॉ सिंपल आप लगा लें, V इज इक्वल टू I इंटू R। V क्या है? VCC। I को मैंने I लिखा है, और R क्या है? इस न्यूमेरिकल सम ऑफ R1 एंड R2। तो ये VCC आपकी ओम्स लॉ लगा के मैंने करंट IE जो VCC से चल रही है और R1 और R2 में फ्लो करके आपके लूप में, इनपुट लूप में गुजर रही है, वो मैंने निकाल ली। अब थेवेनिन वोल्टेज जो है, यानी वोल्टेज ड्रॉप, अगर आप बेस के ऊपर देखें कि क्या वोल्टेज बेस पे पहुंच रही है इन दो रेजिस्टेंसेस की वजह से, वो सिंपली है I इंटू R2। और इस तरह मैंने ये बॉक्स, नीचे वाले बॉक्स से मैंने थेवेनिन वोल्टेज इस सर्किट की कैलकुलेट कर ली है। इन्हीं दो बॉक्सेस को, VCC और V थेवेनिन को, मैं आगे भी यूटिलाइज करूंगी एक और एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब ये थर्ड पार्ट है इस सर्किट का, जिसमें मैं लोड लाइन इक्वेशन मैंने आपके लिए लिखी है और क्यू पॉइंट के डिफरेंट पैरामीटर लिखे हैं। तो लोड लाइन, जैसे मैंने पहले बताया कि लोड लाइन के दो एक्सट्रीम पॉइंट आप निकाल लें। एक टॉप पे जाके जो लोड लाइन इंटरसेप्ट करेगी, कट करेगी IC एक्सिस को, दैट इज टर्म्ड एज IC इन द सैचुरेशन रीजन, और जो नीचे जाके वोल्टेज एक्सिस को लोड लाइन कट करेगी, उसको मैंने कहा है VCE, जहां आप कट ऑफ रीजन में पहुंच गए हैं। तो ये लोड लाइन की दो इक्वेशंस, दो एंड पॉइंट लोड लाइन के आ गए। फिर क्यू पॉइंट हमने निकाल लिया, और इसमें हम अस्यूम कर रहे हैं कि RE जो रेजिस्टर है, जो आपने इमिटर के टर्मिनल के साथ सीरीज में लगाया है, उसकी वैल्यू कम से कम 10 टाइम्स हायर होनी चाहिए बनिस्बत R2 रेजिस्टर के, जो कि बेस में लगा हुआ है, क्योंकि आप थेवेनिन सर्किट को, इक्विवेलेंट सर्किट को लेके वोल्टेज अक्रॉस RE निकाल रहे हैं। तो फिर ये 3-4 इक्वेशंस मैंने कैलकुलेट कर ली फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट यूजिंग द क्यू पॉइंट कॉन्सेप्ट एंड यूजिंग द लोड लाइन कॉन्सेप्ट, और इसीलिए मैंने इनको कलर्ड बॉक्सेस में लिख दिया है कि ये 3 स्लाइड्स जो हैं, ये हमारी फिर बेसिस बनी फॉर ऑल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, जो कि हम अभी आगे जाके करेंगे। सो लेट मी रिवाइज वंस अगेन। ये आपका पहला है, आप हेडिंग में देखें, विद इन ब्रैकेट मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी और सर्किट से, कि यहाँ आप सिंगल पावर सप्लाई से बायस कर रहे हैं इनपुट लूप को एज वेल एज आउटपुट लूप को। इनपुट लूप में अब आपने बेस के साथ 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दी हैं, उस मुनासबत से ये वोल्टेज डिवाइडर circuit bana looking from the base, and then we can move on and write the equations for the input loop as well as the output loop. For the input loop first, जहाँ आप 2 पैरेलल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को यूज़ करें, रिप्लेसिंग R1 एंड R2 सेपरेटली, और फिर मैंने न्यूमेरिकली लोड लाइन और क्यू पॉइंट इक्वेशंस लिख दी हैं। तो ये
तीन स्लाइड्स जो हैं 1 2 3 नाउ, ये बेसिस बना हमारे पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स को यूज़ करने का, और इनसे फिर हम Q पॉइंट की वेरियस वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन एस्टैब्लिश कि ये सर्किट आपका एम्पलीफायर के लिए मुनासिबत रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, अब मैं फिर एक आपके लिए एग्जांपल सॉल्व करती हूँ, और ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ से चूज़ की हैं सारी। तो इससे आप देखें, दिस इज़ नाउ माई सर्किट नंबर 19 विच इज़ लेक्चर नंबर 19.2 मीन्स कि ये सेकंड सर्किट है, जिसको पहले मैंने सर्किट 1 लिया था, वो था सर्किट 1 फॉर द फिक्स बायस। अब मैं चूँकि दूसरा बायसिंग टेक्निक पोटेंशियल डिवाइडर टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, तो उस मुनासबत से मैंने इसको सर्किट 2 का है आज के लेक्चर का, लेक्चर नंबर 19 का सर्किट नंबर 2 विच इज़ द वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो एग्जाम्पल 19.4 एंड विदिन ब्रैकेट ए सिग्निफाइज कि अभी मैंने सिर्फ ये पैरामीटर निकाले हैं। तो इनपुट लूप को हम देख लें, फिर मैंने वही आपकी थेवेनिन इक्वेशन यूज़ की है। तो मैंने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस, यानी बेस पर कितनी वोल्टेज आपकी पहुंच रही है फ्रॉम VCC, जबकि सर्किट में R1 एंड R2 आपके रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये वोल्टेज मैंने निकाल ली। अब मैंने VE दैट इज़ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VE निकाला, तो ये बेस वोल्टेज माइनस the voltage drop across emitter base junction, which is 0.7 volts only because we are using a silicon transistor, so the emitter base junction would also be the silicon junction. तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद फिर मैंने आउटपुट सर्किट में निकाली ICQ and VCEQ, that is what will be the maximum value in the of the collector current for the Q value and what is VCE for the Q value। तो ये चीज़ें न्यूमेरिकली मैंने उन्हीं दोनों इक्वेशन से निकाली हैं जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको शो की हैं। नाउ द सेकंड पार्ट, और अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, ये देखिए इस सर्किट में हम देखें, ये Q पॉइंट इक्वेशंस में हम अस्यूम करते हैं कि RE दैट इज़ द रेजिस्टर, RE इज़ मच ग्रेटर देन 10 टाइम्स ग्रेटर देन R2। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ अब शो किया है कि हम ये भी प्रूव करें कि I2 करंट इज़ अबाउट 10 टाइम्स द बेस करंट। तो ये चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर ली, और हम देख रहे हैं कि IB इज़ ओनली 24.5 माइक्रोएम, और आपकी जो है वो I2 जो है दैट्स 440 माइक्रोएम विच इज़ मच ग्रेटर देन दी IB करंट। तो इन एक्सरसाइजेज से A एंड B से हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में आप किस तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ को Q पॉइंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। Here is another example for understanding the working operation of a potential divider circuit. इस example को मैंने label किया है 19.5. Now I say that a voltage divider bias circuit has the following values. R1 की वैल्यू है, और R2 की वैल्यू है, और इसी तरह RC की वैल्यू है, और RE and VCE की वैल्यूज़ दी है। I do apologize for the symbol W instead of I should have written ohm, kilo ohm। तो ये W को आप ओम पढ़िए। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये रेजिस्टर की वैल्यूज़ हमने यूज़ की हैं, और उसके बाद दोबारा वही थेवेनिन फार्मूला इक्वेशंस जो हमने डिराइव की थी पीछे, उनसे हमने ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी, वोल्टेज across the base, the voltage across emitter collector, और ये values हमने calculate कर ली, and similarly the output current IC and the gain factor, average gain factor HF average now in this case is roughly 200, and similarly IB। तो ये एक्सरसाइज अगेन आपको बता रही है कि कितना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। अगर हमारी टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट्स है पावर सप्लाई की, तो थेवेनिन वोल्टेज आपकी 3.12 निकल रही है, और आउटपुट लूप में
कलेक्टर इमिटर के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 2.42 वोल्ट्स है, और आपकी क्यू पॉइंट में जो इमिटर करंट निकल रही है वो 10 मिली एम है। इमिटर सर्किट में आउटपुट लूप में इमिटर करंट इज़ 10 मिली एम, और बीटा आपका 173 निकल रहा है, और बेस करंट आपकी 57 माइक्रो एम निकल रही है। तो ये पैरामीटर्स जो हैं हम इस तरह हम देख सकते हैं कि हमने मुख्तलिफ पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए। अब इसी एग्ज़ाम्पल को 19.5 से जो मैंने कैलकुलेट की हैं वोल्टेजेस, उन वोल्टेजेस को अब मैं लोड लाइन पे प्लॉट करती हूँ। तो मैंने आईसी सैचुरेशन, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, द इंटरसेप्ट ऑन द आईसी एक्सिस एंड द इंटरसेप्ट ऑन द वीसी एक्सिस। आईसी एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल यानी वीसीसी के एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो आपका कट ऑफ रीजन में चला जाएगा ट्रांजिस्टर के। तो जाहिर है कट ऑफ रीजन में कट ऑफ वोल्टेज मैक्सिमम उतनी ही होगी जितने की आपकी पावर सप्लाई है, विच इज़ 10 वोल्ट्स, और सैचुरेशन करंट आपकी अब निकली 20 मिली एम। तो हमने ये दो लोड लाइन पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ से आप मिड पॉइंट इस कर्व को देख के आसानी से रफली देख सकते हैं कि दी VCE वुड बी समवेयर अबाउट 5 volts and IC would be somewhere about 10 volts। तो आपका जो स्विंग है वो आप मैक्सिमम आप अलाउ कर रहे हैं क्यू पॉइंट को शिफ्ट होने का अक्रॉस द लोड लाइन। अब जैसे मैंने अभी बताया कि हमें फिर कितनी वैल्यूज़, अभी मैंने शुरू में आपको बताया था, ये देखिए यहाँ ये आप देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं इस स्लाइड में कि मैंने एवरेज वैल्यू हाइब्रिड पैरामीटर FE की यूज़ की है, और उससे मैंने कैलकुलेट किया है 173। ये मैंने कैलकुलेट किया है बाय choosing a minimum value which you can expect of a circuit and a maximum value as you can see from this transparency। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रांजिस्टर स्पेसिफिकेशन शीट्स में एक्चुअली आपको दी हुई होती हैं ये बीटा की वैल्यूज़, और इसमें कई जगह आपके मैक्सिमम वैल्यू भी कोट की हुई होती है और आपके मिनिमम वैल्यू भी कोट की होती है। तो हम टिपिकल वैल्यू इस तरह ले लेते हैं कि जैसे आपने उसका प्रोडक्ट लेके उसको स्क्वायर रूट कर लिया हो, मल्टीप्लाई बोथ द मिनिमम एज वेल एज द मैक्सिमम वैल्यू एंड टेक द स्क्वायर रूट, तो वो आपकी एवरेज वैल्यू आ गई। तो इस तरह हम ये एवरेज वैल्यू यूज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि हमने तीनों जो पैरामीटर निकाले, IC, IB, IC और VCE, उसमें कहीं भी हमने बीटा को यूटिलाइज नहीं किया। तो ये इस सर्किट की एक एडवांटेज है ओवर अदर सर्किट्स कि हम बीटा पर क्यू पॉइंट हमारा डिपेंडेंट नहीं है। अब मैं फिर हाईलाइट करती हूँ उसी पॉइंट को, जो उस प्रॉब्लम को जिसका हमने जिक्र किया कि ऑर्डिनरी एम्पलीफायर सर्किट्स में अगर आप दो पावर सप्लाईज लगाएं, एक लगाएं इनपुट सर्किट की अलग से, एक लगाएं आउटपुट सर्किट की अलग से, और फिर IB, IC और VCE डिफरेंट पैरामीटर्स आप कैलकुलेट करें किसी ट्रांजिस्टर सर्किट के, तो हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर की, चूँकि वहाँ डिपेंडेंट हैं ये IC और IB डिपेंडेंट हैं बीटा पे, करंट गेन फैक्टर पे, और करंट गेन फैक्टर फर्दर डिपेंडेंट है ऑन वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो वी कैन एंड अप with oscillations of Q point, large oscillations भी मुमकिन है। तो उसका एक हल हमने निकाला कि हम बाइसिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज से करके देखें ट्रांजिस्टर की, और उस बाइसिंग को हमने एक स्पेशल नाम दिया आज के लेक्चर में, द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट यूटिलाइज फॉर बाइसिंग द ट्रांजिस्टर टू बी यूज्ड एज एन AC सिग्नल एम्पलीफायर सर्किट। इसमें स्टेबिलिटी किस तरह हम को कैसे वो कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। द क्यू पॉइंट ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट इज not so heavily dependent on the gain factor beta than as compared to the fixed bias circuit। तो फिर हम कह सकते हैं कि चूंकि ये इतना strongly dependent नहीं है बीटा पर, हालांकि बीटा strongly dependent है टेम्परेचर पे,
तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट या पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज़ द बेस्ट चॉइस टू बी यूटिलाइज्ड फॉर AC एम्पलीफायर सर्किट्स। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि अगर IE इज़ 10 milliamp, then the range of beta is 100 to 300, then we can calculate the variation in the emitter and base current, और आप देख रहे हैं कि बहुत insignificant variation निकल रही है IE में, तो emitter current पर इतना significant असर नहीं पड़ रहा। आप देखिए कि हालांकि बेस करंट पर अगर हम बीटा 100 लेते हैं तो बेस करंट हमारी निकल रही है 100 माइक्रो एम, लेकिन जो आपका सेचुरेशन पॉइंट है दैट्स अबाउट 9.9 मिली एम। उसके बाद अगर आप 3 टाइम्स बीटा फैक्टर बढ़ा लें तो जो वेरिएशन आप जाहिर है बेस में भी वेरिएशन आपके आ गई, और जब हम सेचुरेशन पॉइंट IC का निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं इस द वेरिएशन in the intercept on the y-axis, that is collector current, बहुत insignificant variation है. So we say that ICQ hardly changes over the entire range of beta. तो बीटा को अगर आप 3 टाइम्स भी बढ़ा दें तो हमारा जो सेचुरेशन पॉइंट है सेचुरेशन क्यू पॉइंट है उसमें बहुत कम वेरिएशन आ रही है। तो वी कैन से दैट दिस वी कैन कंक्लूड दैट द वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट्स आर स्टेबल अगेंस्ट एनी वेरिएशन caused by temperature in the beta factor। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ये एग्जाम्पल इसको मैंने सर्किट 19.3 कहा है। ये अब थर्ड सर्किट मैंने यूज़ किया है एक्सक्लूसिवली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम 19.6 एंड इस प्रॉब्लम को मैं अगली 4 स्लाइड्स में कैलकुलेट करूंगी, इवेल्यूएट करूंगी डिफरेंट पैरामीटर। सो लेट्स स्टार्ट विद स्लाइड नंबर 1 which I have labeled as A 19.6 within parenthesis A means this is the first slide। अब इसमें मैंने 4 आपको रजिस्टर नज़र आ रहे हैं, 2 to be utilized as a voltage divider circuit across the base at the base, then 1 resistor has been connected to the emitter and the 4th resistor has been connected to the collector terminal। तो 4 resistors को लेके अब हम Q point के वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स प्रोसीड। और सर्किट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं चारों रजिस्टर की, VCC बायस की विच इज़ 12 वोल्ट। Okay, so find the operating point Q for this circuit। पहला आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि Q पॉइंट निकालें। To remind you once again, Q पॉइंट में हमें क्या क्या निकालना पड़ता है। What do we have to calculate in order to determine the Q point completely? Number 1, the base current IB, number 2, the collector current IC, number 3, VCE। तो ये 3 पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं और किस तरह करने हैं। चूँकि ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि हम इसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बेस के लिए लगा के इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लें। तो अब इस R1 और R2 रजिस्टर को मैं एक दूसरे अंदाज से आपको शो करने की कोशिश करूँगी कि जहाँ ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जहाँ आपको ये पैरेलल में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए ये R1 R2 को मैंने एक थोड़ा सा रीड्रॉ कर लिया है। इफ़ आई कैन गो बैक अगेन, ये देखिए ये R1 को अब मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू R2 और VCC आपको लगी नज़र आ रही है उसी तरह। अब मैं R2 के पैरेलल में एक वोल्टेज ऑब्टेन करना चाह रही हूँ, उस वोल्टेज को मैंने थेवेनिन वोल्टेज कहा है। तो अगर आप इस लूप को देखें जो आपको टॉप पे इस सर्किट में नज़र आ रहा है, तो मैंने सिंपल ओम्स लॉ लगाया है इस सर्किट में, दैट इज़ VCC इज इक्वल टू I इंटू R। नाउ R इज़ R1 R2। इस लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको लूप नज़र आ रहा है उसमें दोनों सीरीज़ में लगे नज़र आ रहे हैं, तो R1 प्लस R2 कर लिया। यहाँ से मैंने करंट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द लेफ्ट हैंड लूप VCC की वजह से निकाल ली, विच इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आऊँ राइट हैंड साइड लूप में। अब अगर R2 के अक्रॉस मैं देखूँ,
और R2 के अक्रॉस क्या चीज़ है, ये देखिए R2 के अक्रॉस मेरी वोल्टेज आ रही है बेस से होके RE में। तो R2 के अक्रॉस जो अब मेरी वोल्टेज है, अगेन इक्वेशन नंबर 2, वो भी आप देखेंगे सिंपल ओम्स लॉ है, V Thevenin इज इक्वल टू I, द करंट I विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, टाइम्स R2। तो R2 में से भी I करंट ही फ्लो कर रही है। So I can calculate the Thevenin voltage from this equation 2 utilizing equation 1. Equation 1 has given me the current I, and that I substitute in equation 2, so I can calculate a relation, I can obtain a relation, Thevenin voltage relation, which is equation 3. So starting with equation 1, I can go to equation 3. These simple 4 equations give me a set of equations to be utilized for the voltage divider circuit. If we understand the voltage divider as if we can transform the voltage divider circuit in which I have two resistors R1 and R2, and draw an equivalent circuit which I have shown in slide number 30. Now I can move on to the next part, which again is my this is my A part, that is how to calculate various parameters. Now starting with A again, my first job is to determine VBB, that is the Thevenin voltage which appears at the base, which appears looking into the base, that is between base and the ground terminal. So utilizing equation 3, I carry forward my equation number 3, and I calculate that if my VCC is 12 volts, R1 is 10 kilo ohm, and R2 is 2 kilo ohm, then I get 2 volts going into the base from the source across this potential divider circuit. Now this is the B part. Now I determine the voltage drop across RE, that is how much voltage is going to be dropped. We have a voltage VCC. Now in the output loop, in the collector emitter loop, this voltage is going to be divided between the resistor RE and the resistor RC and the collector emitter diode. So that is what I have written. VBB is equal to the input loop first, and then I get the voltage now, because the voltage drop across the resistor RE happens to be in the is shared between the is common between the input loop as well as the output loop. So if I come back to the input loop again, then we have a voltage drop across the base, and we have a voltage drop across the resistor VRE, and the voltage drop across the diode, input diode in the input circuit. So VBB is equal to voltage drop across base emitter plus voltage drop across the resistor RE, and we can calculate VRE. You know, we have just calculated the Thevenin voltage VBB, which was 2 volts, and we subtract the potential drop across the emitter base diode, forward bias diode, and we obtain that a voltage drop of VRE is 1.3 volt. So let me go back again to revise what we had just done. ये देखिए VBB आपको सर्किट राइट हैंड साइड की सर्किट डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपकी वोल्टेज ड्रॉप, आपकी पावर सप्लाई VCC का वोल्टेज ड्रॉप बेस और इमिटर के दरमियान, ग्राउंड के दरमियान कितना हो रहा है, 2 volts. So 2 volts out of 12 is appearing into the base, and across the load RE कितना हो रहा है, 1.3 volts, and similarly we can calculate using the, अब आपके पास VRE निकल आया है, RE आपको दिया हुआ है, तो हमारे पास करंट कितनी RE में, रेजिस्टर में से करंट कितनी जा रही है, which is 1.3 milliamp. तो इस तरह ये सिंपल इक्वेशंस लगा के आप मुख्तलिफ पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं इस सिंगल सर्किट के, जो अभी तक वही चल रहा है। अब पार्ट डी आ गया। पार्ट डी में मैंने क्या करनी है, ये आपको एक चौथा रेजिस्टर भी नज़र आ रहा है, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज
RC। तो अब हम देखते हैं कि VCC टोटल पावर सप्लाई जो कि 12 वोल्ट की है, इसमें से कितना हिस्सा चौथे रेजिस्टर RC के अक्रॉस हो रहा है। तो हमने IE और IC को अप्रॉक्सीमेटली ले लिया 1.3 मिली एम, और इस तरह हमने IC भी एस्टिमेट कर ली, और VRC ओम्स लॉ के तहत ICRC होगी। तो हमने देखा 5.2 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस चौथे रेजिस्टर RC आ गया। इन तमाम वैल्यूज़ को हम एंड में जाके कंक्लूड करके लिस्ट कर देंगे कि टोटल आपका 12 वोल्ट्स कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम 19.6। अब मैं VCE, तो हमने पहले वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर RE कैलकुलेट किया, विच इज़ 1 किलो ओम का था रेजिस्टर। फिर हमने 4 किलो ओम के RC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट किया। अब तीसरा वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट लूप में कहाँ हो रहा है? डायोड के अक्रॉस, रिवर्स बायस डायोड जो कि कलेक्टर एमिटर के बीच में है। तो ये कितना हुआ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ड्रॉप? अगेन हमने सिंपल किरचॉफ लॉ इस लूप के लिए लगा के 5.5 वोल्ट्स हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द वोल्टेजेस इनपुट लूप में भी और आउटपुट लूप में भी, जो कि एक सिंगल पावर सप्लाई VCC से हमने इवेल्युएट की हैं ये सारी वैल्यूज़। अब मैंने एंड में, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि हम तमाम रिजल्ट्स को जो हमने इस एक्सरसाइज में निकाले हैं इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, वो हम लिस्ट कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि if we add up all these values, voltage drops across the circuit, that would come out to be VCC। और याद रखिए कि VBE का वोल्टेज ड्रॉप 0.7 भी हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। और फिर हमने कहा है कि इमिटर करंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट विच इज़ 1.3 मिली एम। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने कहीं भी बेस करंट फ़िलहाल कैलकुलेट नहीं की है इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में, और यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है इस सर्किट को यूज़ करने की कि वी हैड नेवर यूज्ड बीटा। और बीटा हमने क्यों कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया कि हमें IB दैट इज़ बेस करंट की कहीं भी ज़रूरत पेश नहीं आई। तो चूँकि हमने अपनी कैलकुलेशंस में IB को यूज़ नहीं किया, लिहाजा बीटा की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने सिंपली ये वैल्यूज़ थेवेनिन सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से निकाल ली हैं। और दूसरी इस सर्किट की सबसे बड़ी सिंपल बात क्या थी? इसकी सिंपलिसिटी। जैसे मैंने पहले कहा कि बजाय दो पावर सप्लाईज़ के आप एक सिंगल पावर सप्लाई से इनपुट सर्किट को भी फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, और उसी सेम पावर सप्लाई से आप आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस भी कर रहे हैं। सो दीज आर दी वेरियस द समरी ऑफ दिस प्रॉब्लम 19.6 दैट these results give us the optimum Q point for this particular circuit. और जिस तरह मैंने सम अप किया इस प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ जो आपने एस्टिमेट की हैं, जो आपने कैलकुलेट की हैं, अब मैं उसी तरह आपको लिस्ट कर देती हूँ तमाम वैल्यूज़ को जो मैंने कैलकुलेट की थी। मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिस्ट कर देती हूँ जो मैंने इस सर्किट के लिए डिराइव की थी। तो इन रिव्यू वी कैन सी दैट द थेवेनिन वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड्स अमाउंट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट यू हैव कनेक्टेड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर सप्लाई VCC, and then we can say that the current flowing through the resistor RE which you have connected across the emitter terminal depends upon the value of RE as well as on the value of voltage drop across RE. That is in turn voltage drop RE would depend upon the value of the resistor as well as on the value of the Thevenin voltage VBB. And finally we say that emitter current and the collector current are more or less equal if we can ignore the base current, because we had selected the base current magnitude to be extremely small. So this is a simple review equations for the potential divider circuit for this particular example. ये भी एक उसी तरह की एक्सरसाइज है जैसे हमने पहले 19.6 प्रॉब्लम में की थी। यहाँ अब मैं एक नया सर्किट आपको दे रही हूँ एंड आई लेबल इट एज 19.4 कीपिंग इन व्यू कि ये लेक्चर 19 है और इस पर्टिकुलर सर्किट को मैंने लेबल किया है सर्किट 4।
लिहाजा उसी मुनासबत से मैंने इस प्रॉब्लम को लेबल किया है 19.7। विदिन parenthesis A इंडिकेट्स कि ये पहली पार्ट है जिसमें मैंने कैलकुलेट करना है। अब आपको टोटल करंट I एंड VB थेवेनिन वोल्टेज यहाँ पे हमने लिस्ट की हुई है, जो कि मैंने आगे चल के कैलकुलेट करूँगी। तो RB1 RB2 वैल्यूज़ हमने निकालनी है, हमें दी हुई हैं, जिसकी मदद से हमने मुख्तलिफ पैरामीटर कैलकुलेट कर लेने हैं। अब देखिए कि हम पहले थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। अब इस स्लाइड में मैंने क्या लिखा है कि हमें VB बेस वोल्टेज दी हुई है 3 वोल्ट्स की, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला लगा के हम R1 और R2 को की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम थेवेनिन वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पार्ट C में आप देखें कि मैंने वही वैल्यू 3 वोल्ट्स कैलकुलेट कर ली है जो मैंने शुरू में लिस्ट की थी। ये मैंने लिखा था कि ये एंड रिज़ल्ट हमें 3 वोल्ट्स थेवेनिन वोल्टेज और टोटल करंट I निकली है। ये हमने पार्ट A में किस तरह निकाली, मैंने थेवेनिन वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो मुझे बेस रेजिस्टेंसेस RB1 और RB2 दी हुई हैं। तो यहाँ से फिर मैंने सॉल्व किया RB1 और R2 को लगा के, तो ये मेरे पास थेवेनिन वोल्टेज आ गई और सर्किट की वैल्यूज़ में आपके ये पैरेलल में सर्किट 10 ओम्स किलो ओम्स वैल्यू आ गई। अब इसमें मैं इसको डिवाइड करती हूँ, अस्यूम करती हूँ कि जैसे हम 2 लूप्स की बात कर रहे हैं। पहले मैंने बेस इमिटर लूप की बात की, वहाँ से मैंने IE निकाल ली बेस इमिटर लूप से। अब इस वैल्यू ऑफ IE को मैं आउटपुट लूप कलेक्टर इमिटर लूप में मैं वैल्यू यूज़ करती हूँ, तो VCE की वैल्यू मेरे पास 4.8 वोल्ट्स आ गई। तो आप ये देखिए इस सिंपल एक्सरसाइज में हमने 2 स्टेप्स में एक स्टेप हमने ये लिया। ये देखिए कि हमने RB1 RB2 को हमने कहा कि ये वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म कर रहे हैं, तो लिहाजा ये मैंने सिंपली यहाँ रिज़ल्ट लिस्ट कर दिए हैं। ये अब हमने थेवेनिन वोल्टेज का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से फिर हमने VBB कैलकुलेट कर ली जो कि 3 वोल्ट निकली। फिर हमने पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की मदद से हमने 10 किलो ओम्स की रजिस्टर निकाल ली। उसके बाद हमने इस सर्किट को ऐसे अस्यूम किया एज इफ it consists of 2 loops, one the base emitter loop and second the collector emitter loop। वो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशंस लिख के वहाँ से हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकाल ली। सो इन दी एंड आई कंक्लूड दैट दिस इज़ हाउ ऑल DC सर्किट्स आर एनालाइज्ड एंड डिज़ाइन। और ये आपकी एक मिसाल थी, दूसरी एग्जाम्पल थी पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की। And in the summary, we can say that voltage divider biased circuits are immune to changes in beta because we are not using any, we have not utilized the equation in which beta is incorporated. Hence, even if there are any changes in the temperature, because beta is not coming into our equations, therefore we can say that this particular circuit is independent of beta, and hence the changes in temperature does not affect the Q value or Q point of this particular circuit. And obviously the next conclusion would be that in this circuit the Q point values are stable against any changes in beta, and a single bias source is utilized, which makes the circuit quite simple. And but the important thing is that we have to understand and draw an equivalent circuit, equivalent Thevenin circuit for a potential divider circuit. So if we can understand that, then we can calculate different values, and that is why I had included a single slide for the calculation of the Thevenin voltage for any given circuit in which the bias is connected to a potential divider circuit. And then finally, that in this circuit we have to keep the current in the voltage divider circuit about 10 times the value of base current, so that the for the sake of mathematical simplification. For design, we should be able to
calculate different values of Thevenin resistor values and Thevenin voltage values which appear at the base terminal B. So we would conclude here, and I look forward to meeting you next time with yet another new topic, because so far we have discussed a transistor, bipolar junction transistor, in quite detail, consisting of simple biasing circuits and special designs like today, which included a potential divider circuit. Thank you so much for your attention, and I look forward to seeing you the next time. Allah Hafiz.